say Uttar Pradesh is a big state, big population, big focus, big ambition, big responsibility, big actions. Hence, I request all the investors to come big investments to the state. उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए उत्तम स्टेट है. दुनिया में आने वाले दिन में इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश एक उत्तम स्टेट होगा. मैं इसी शब्द के साथ I would like to congratulate the UP government commitment, efforts for the summit on its success. I will end my speech by saying Uttar Pradesh beckons like never before. Come investment and begin your discovery of India. Jai UP, Jai Bharat, Jai Hind. जोरदार तालियां हो जाए everybody. Ladies and gentlemen, we are very, very honored to have such dignitaries on the dais, and we also have with us Shri Awasthi, the Chief Advisor of the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. मैं विनती करूंगी श्री मुकेश मेश्राम जी वो इनको बुके देके स्वागत करें. श्री अवनीश अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन. Yes, yes. Chief Advisor to CM Uttar Pradesh. जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much sir for being with us. And we will be going ahead with the panel discussion. So on the panel discussion, we also have with us Mr. Vivek Shukla ji, the CEO of Lalit Suri Hospitality Group. He's an industry leader of India's hospitality industry. I request you to please come on the dais and please take your seat. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका. Thank you so much for joining with us. Ladies and gentlemen, it's absolute honor to have sir with us, and he had been very kind to give us a lot of time. Mr. G. Kishan Reddy ji, Honorable Minister Tourism, Culture and Development of Northeastern Region of India, Government of India. हम उनको एक प्यार का प्रतीक देना चाहेंगे हमारी ओर से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से. तो मैं विनती करूंगी श्री जयवीर सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के, इनको एक बहुत ही प्यारी सी राम जी का प्रतीक, एक मूर्ति इनको गिफ्ट करें. सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा आगे आ जाएं आप. जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. I request all of our dignitaries, please join us for the photo op. और अब मैं विनती करूंगी श्री जी अशोक कुमार IAS, डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जय शक्ति. सर आप यहीं रहे हमारे साथ, वो एक बुक प्रेजेंट करना चाहेंगे. सर कैबिनेट मिनिस्टर सर प्लीज, हम आपको एक नमामि गंगे की ओर से एक बहुत ही सुंदर सी बुक प्रेजेंट करना चाहेंगे. हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you so much for taking your time, and please join us for the panel discussion. Ladies and gentlemen, we're going ahead with the panel discussion. It is on experience sharing address. We have with us on the panel, we have Shri Santosh Kutty ji, Chief Operating Officer, Mahindra Holiday and Resorts. Shri M.L. Srivastava ji, IFS, PCCF, come Additional Chief Secretary, Tourism and Civil Aviation Department, Gangtok, Sikkim. We have with us Mr. Vivek Shukla ji, CEO of the Lalit Suri Hospitality Group, and we have with us Ms. Sonia Kriplani ji, CEO, CMO, the Unknown Planet of India, Mumbai. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस सोनिया कृपलानी जी, CEO, CMO, the Unknown Planet of India, Mumbai, to be the moderator for this session.
Good afternoon. Do I see hands up? I want to see you all awake still. Great, I can see a few hands up. It's a real pleasure to be here, to meet everyone in the room, and to be speaking on a platform where there's such wonderful people like Shri Ji, Kishan Reddy, Shri Mukesh Meshram Ji, and Shri Jaiveer Singh. Today there were a couple of topics that came up, topics that were close to my heart. First was started by the lady who opened the floor, Miss Vidya Bharti. Miss Vidya Bharti said something that today, for the first time, I was aware that we could do it. आपको जब भी आप दुनिया में यूपी के बारे में सुनते हैं, there are mixed reviews. पर आज मैंने पहले बार सुना है from Uttar Pradesh to Uttam Pradesh. And on that note, let us start this discussion. Who is going to tell our stories? How are our stories going to be written? How is UP going to write its story from now onwards? And I'd love to invite my panel to discuss this and say how are we going to invest, me included, in changing what UP tourism will be and bringing it forward into 2050 right away. So on this note, I invite Mr. Santosh Kutty and Mr. Santosh Kutty and Mr. Vivek to share their views on how we as investors can change what UP tourism is. Hi, good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Santosh. I represent Mahindra Holidays. From Sonia's question that you asked me about what UP can do. So, just to give you a background a little bit, we are about, we are the largest vacation ownership company in Asia. We do not have too much of a presence right now in UP, even though we are the largest. We have about 4,700 rooms in India and outside India. And in many states, we have 600 rooms, 500 rooms. But we do not have that many rooms in the state of Uttar Pradesh. In my view, Uttar Pradesh is today ready to get the influx of tourists, is getting the infrastructure, and is getting the airports, and is getting the flights to enable tourism finally. So from my point of view, my company's point of view, what we really need to do from a tourism perspective in UP is leverage exactly the subject that we have, the heritage and the spiritual tourism that is actually abundant in the state. UP is already the first or the second highest domestic tourist visitations that UP has. But what it does not have is, we do not have enough branded hotels. We have only 6% of the branded hotels of this country in UP, even though our population here is 25 crores, for example, right? We have 4 airports. We do not have enough connectivity internationally and nationally. In the country, of course, other than, what we have as established in UP, other than the established destinations like Varanasi, like Lucknow, like Agra, which are world famous. And remember, 2 of the top 10 most visited, ticketed monuments in India are in UP. But we still fail to attract many, many more visitors, which we can do. In my view, with the new tourism policy that the government of India has, the UP tourism policy which is coming up, I am told, and there is a lot of incentives for investors like us to come in and spend our investments. So our plan, by the way, is to invest in UP. Our group chairman has spoken about it, and we intend to do that. So for us, we think from tourism point of view, for UP perspective, we need to leverage
the connectivity, we need to build better infrastructure, we need to have better hygiene execution on the ground, and of course, you need much more room inventory, alternate accommodation, and move from what is, what everybody talks about destinations, just not destinations, just not properties. We need to move to experiences. That move is going to change, I think, our destiny. That's what I would add to this. I absolutely agree with you. And on that note, I'm going to call on the gentleman who's been doing that. Mr. Vivek, I know this is not your main company, but I believe the CSR and Mrs. Suri's daughter has been building the destinations, not just the hotels. Can you start with that and then introduce us to the Lalit, please? Thank you very much. Namaskar, ladies and gentlemen, Honorable Minister Sir and Deviyon Sajjano, ladies and gentlemen. It's a real proud moment for me because हम भी Uttar Pradesh से हैं और it's a great honor for me to be here standing in front of this august audience. First and foremost, I would like to thank the UP Global Investors Summit organizers, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, Honorable Tourism Minister and our dear officers and august gathering. उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है. आई थिंक ये छोटे से हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है और गॉड्स ओन कंट्री करके एक टैगलाइन आई थी एक स्टेट के लिए. हम बोलेंगे ये गॉड्स ओन स्टेट है. उत्तर प्रदेश इज गॉड्स ओन स्टेट. सो on that note, thank you very much for having me over here. Our founder, Chairperson Shri Lalit Suri ji, and our current Chairperson and CMD, Dr. Jyotsna Suri ma'am and her family, have created a vision of developing destinations as a landmark. And wherever we go, we want to develop destinations and create opportunities in every front, whether it's creating employment, promoting local heritage, art and culture, the local cuisine, and wherever we are across the landscape of the country, we have done that. हालांकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारा कोई अभी ऑपरेशनल होटल नहीं है, मगर चित्रकूट में मैडम ने कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया था और आने वाले समय में और ये व्यवस्था देख कर के हमारी जो संस्कृति है, our culture, our heritage, I think UP has everything to offer, from wildlife to nature to every element of what we want to offer. And sky is the limit, because I think, as my colleague Santosh just mentioned, with the right investment that is coming in upgrading the infrastructure, creating of airports, creation of hotel stays, and it's not only in main cities of UP, but in the other cities as well, lesser known destinations. My childhood, I used to go for picnics to a place called Bithur. Bithur is also not many people would have heard of, and I think it had some great amount of alligator farming, and there used to be these alligators that we used to go and have fun and watching it. From a spiritual tourism, religious tourism, wellness destination, wildlife tourism, I think UP has every element what India offers in different states. And I think if we all need to come together as partners and create the best platform of opportunities towards the surge that Uttar Pradesh truly deserves. And I think we can go leaps and bounds in making Uttar Pradesh the best state where the real investment is going to come in. And we are very, very confident that we will also be having our footprint very soon. I'm sorry to interrupt. I would like to know कि जैसे आपने आइस हॉकी स्टार्ट किया है लेह लद्दाख में, आपने कभी सुना है इंडिया आइस हॉकी के चैंपियंस बनाती है? इन लोगों ने स्टार्ट किया है आइस हॉकी के चैंपियंस. थैंक यू सो मच. हम लोगों ने आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? Can you tell us how heritage and culture will make the chain over here? How can we bring heritage and culture to bring up a place like Bithur, which I love also? So I think thank you for reminding. हम लोगों ने द्रास कारगिल जो कि इंडिया के मैप में एक
अलग मुकाम से जाना जाता है। हम लोगों ने वहाँ पे एक पोलो मैच भी किया था, हम लोगों ने लेह में आइस हॉकी भी करी, बॉम्बे में हम लोगों ने डब्बा वाला का रेस किया, खजुराहो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने तिपैया थॉन करी, कश्मीर में श्रीनगर में हम लोगों ने शिकारा थॉन किया। और इस तरीके से हम यूपी में कुछ एक्साइटिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हम लोग आर्ट एंड कल्चर का रिफ्लेक्शन, आई थिंक देयर इज़ सो मच ऑफ, चाहे ये शिव विवाह हो, शिव और पार्वती का विवाह हो, या फिर हमारे राम जन्मभूमि की नेतृत्व में जो आयोजन होता है अयोध्या में, हम उस प्रकार के कोई बहुत ही अच्छे तरीके के फेस्टिवल्स क्रिएट करेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे दैट हम सब लोकल कम्युनिटी को उसमें प्रोत्साहन दें और उसमें पार्टिसिपेट करें। मैडम विद्यावर्ती, मैडम ओ श्रीवास्तव जी, सॉरी सर जी, आपको कैसे लगता है कि हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म को यूज़ करके ना ही कोई और ऑडियंसेस लेके आए, कोई और ट्रैवलर्स लेके आए, पर अभी जो ट्रैवलर आता है, जो यूपी को आता है, उसको थोड़ा उनका स्टे लंबा कर दे, उनको थोड़े एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें कराए, क्रूज़ टूरिज़्म कराए, कैसे चीज़ें उनको इन्वॉल्व करे, इमर्स करे कि उनकी यात्रा भी बहुत सुखी हो और वो खर्चे भी थोड़ा ज़्यादा, कि यहाँ की आमदनी भी बढ़े। धन्यवाद। Respected Honorable Union Minister, respected Minister for Tourism and Culture, Shri Jaiveer Singh ji, all the dignitaries on the dais, off the dais, and ladies and gentlemen. जो सवाल आपने पूछा कि अगर कोई टूरिस्ट आता है उत्तर प्रदेश में तो उसके प्रवास को और स्मरणीय कैसे बनाया जाए, उसके प्रवास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, स्वतः यहाँ रुकने के लिए इच्छुक हो, ये मूलतः सवाल है आपका। जी हाँ, देखिए, मैं सिक्किम राज्य से हूँ, मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव हूँ सिक्किम में टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी बातें कहूँगा जो यहाँ के लिए मौजू होंगी, पर्टिनेंट होंगी। जो आपके यूएसपीज़ हैं, जैसे सिक्किम की बात मैं करूँ तो 0.2% जोग्राफिकल एरिया कंट्री का है भारत का, और 1/4 ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इज़ देयर इन सिक्किम। ये उसका एक बहुत बड़ा यूएसपी है। क्राइमलेस, एकदम परफेक्टली क्राइमलेस स्टेट है। इको टूरिज़्म वहाँ पर बहुत संभावित है, बहुत प्रबल संभावना है उसकी। नेचर एंड कल्चर की बहुलता है, तो ये उसके यूएसपीज़ हैं। इसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो आज सवेरे से ये बातचीत चल रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश में। 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके पास एयरपोर्ट्स हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, दूरस्थ स्थानों तक हमारे रोड्स की पहुंच को और प्रबल बनाया गया है। तो हम सिक्किम में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो वेलनेस टूरिज़्म हो, आपके बुद्धिस्ट सर्किट का भाग है, ईस्टर्न बुद्धिस्ट सर्किट का सिक्किम। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लॉर्ड गुरु पद्मसंभव की भूमि है, आपको पता है, सामदुपची, चेरी जी, ये विश्व स्तर के टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्वतः ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मशहूर है, एक नैरेटिव ऑलरेडी उसका स्थापित है। उस नैरेटिव को हम और कैसे प्रबल कर सकें। हमारे उत्तर प्रदेश में जो वैविध्य है, मेरे ख्याल से बहुत कम जगहों पे ऐसा वैविध्य है। आप यहीं से बात, मैं बनारस का पैदाइश है मेरी, बनारस का पैदा हुआ हूँ। 4 कोस पे पानी बदले और 8 कोस पे पानी, तो उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रचलित है। इतना वैविध्य है इस प्रदेश में। इस बात को आप किस तरीके से शोकेस कर सकते हैं, इतनी हिस्टोरिकल हमारे लेगेसी है, उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी संग्रहालय में जाते हैं और हमको 2 तलवारें टंगी दिखती हैं तो देख करके आगे बढ़ जाएंगे।
अगर उसी में गाइड ने बताया कि साहब ये जो 2 तलवारें हैं, इन्हीं तलवारों से महारानी लक्ष्मीबाई ने जो है इनका सर कलम किया था अंग्रेज़ों का, तो आप तुरंत वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और 1 घंटे देखेंगे कि साहब ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इसकी पूरी संभावना है। संभावना ही नहीं, ऑलरेडी नैरेटिव बन चुका है। आज सारा देश और विश्व जानता है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत प्रबल है और बहुत सक्षम अधिकारी लोग हैं यहाँ पर। हम निरंतर उत्तर प्रदेश के साथ संपर्क में हैं और सिक्किम टूरिज्म मैं आपको बताऊं कि बहुत मजबूत स्थान पर है। हम निश्चित रूप से एक्सचेंज के जरिए उत्तर प्रदेश में और करें। धन्यवाद। आई वांट यू टू स्पेंड 1 मिनट मोर। एक क्वेश्चन है आपसे। 17,000 फीट हाई थंगको में आप लोगों ने होम स्टे रख लिया है और बहुत ही बढ़िया कि जेट प्लेन्स और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं। आप इसके बारे में जो होम स्टे, हाई क्वालिटी होम स्टे और इको टूरिज्म जो आपकी बनारस के घाट पे बन सकता है, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बहुत बनाइए। अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव बीन देयर एंड यू आर शोकेसिंग इट हियर। होम स्टेज टूरिज्म का जो हमने सिक्किम में 1194 होम स्टेज ऑलरेडी हम बना चुके हैं। एक छोटा सा राज्य है, आपको पता है, मुश्किल से 7 लाख की पॉपुलेशन है। हर साल हम करीब 18 से 20 लाख टूरिस्ट हम सिक्किम में आते हैं और होम स्टेज आर मोर पॉपुलर दैन द रेगुलर आपके टूरिस्ट होटल्स, हाई एंड टूरिस्ट होटल्स। गैंगटोक में मैं कह सकता हूँ कि शायद लखनऊ एक बड़े राज्य में उतने 5 स्टार होटल्स नहीं होते जितने गैंगटोक में हर मशहूर ब्रांड आज आने को तैयार है। आपके पास नेचर है, इको टूरिज्म है, माउंट कंचनजंगा है, नेचर है, कल्चर है और इस कहानी को आप एक सेमलेस कहानी को पिरो सकें। होम स्टेज में जाकर के लोग कुछ भी देने को तैयार हैं। अगर आज मैं 10,000 रुपये या 15,000 रुपये पर प्रतिदिन की बात रखूँ, वहाँ पर उसका टैरिफ रखूँ, देर आर पीपल टू टेक, देर आर हंड्रेड्स ऑफ टेकर्स। So home stays tourism is a very successful story in Sikkim. Definitely that can be emulated elsewhere. Sikkim tourism has received more than 33 national and international awards. Thank you sir. Thank you so much sir for that. और 26,000 था, 15,000 नहीं। Thank you so much, Ms. Sonia Kirtani ji, for moderating the session very well. Everybody, let's put our hands together for Mr. Vivek Shukla ji, Shri M.L. Srivastava ji, and Shri Santosh Kuti ji. Thank you so much for the panel discussion. Thank you so much. Ladies and gentlemen, अब मैं विनती करूँगी हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री जयवीर सिंह जी को वे हमारा मार्गदर्शन दे करें। सर आप लोग काफ़ी सुन चुके हैं और मुझे लगता है था सूना से आप लोग बैठे हैं, तो क्या थकावट आ गई क्या? थोड़ा उत्साह नहीं? आपने जी किसे रेड्डी साहब इतना अच्छा बोले, लोग अच्छे सुझाव दे रहे हैं, थोड़ा उत्साह जोश रहना चाहिए। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, इस कार्यक्रम के बहुत बहुत सम्मानित आज के चीफ गेस्ट भारत सरकार के पर्यटन, संस्कृति और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के सम्मानित मंत्री, बहुत ही ऊर्जावान, क्षमतावान, तो सदैव उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और प्रमोट करने के लिए लगातार हम लोगों को संरक्षित किए रहते हैं। हम सबके प्रणेता आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी साहब, माननीय मंत्री भारत सरकार, मंचासीन श्रीमती विद्यावती जी जो महानिदेशक हैं ASI की, आदरणीय जी अशोक कुमार जी, नमाम गंगे के DG साहब, श्री संजय बंदोपाध्याय जी अध्यक्ष अंतरजलीय यातायात अथॉरिटी, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी जो हमारे CM साहब के, मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, आदरणीय डॉक्टर GN सिंह साहब, इनके बारे में शायद आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि कोरोना काल में आप भारत सरकार में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया थे। आपके ही देखरेख में वैक्सीन का जो खोज हुई, उत्पाद हुआ,
उसके लिए आपको एक बार स्वागत सत्कार होना चाहिए। आप आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। हमारे प्रमुख सचिव साहब, हमारी यूपी की टूरिज्म और कल्चर के अधिकारियों की पूरी टीम और बहुत सभी इन्वेस्टर्स और विशेषज्ञ लोग जो मंच पर और मेरे सामने मौजूद हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने का मन बनाया है, उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाई है, उन सबका उत्तर प्रदेश की ऐसी धरती पर जो ऋषियों की धरती, मुनियों की धरती, तपस्वियों की धरती, तमाम बोली भाषाओं की धरती, विभिन्न संस्कृतियों की धरती, आज़ादी की लड़ाई में सर्वोपरि भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश की धरती पर जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं, विभिन्न बोली भाषाओं की धरती, जहाँ अवधी, ब्रजी, पूर्वांचली, बुंदेलखंडी तमाम भाषाओं का, जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं का इस प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आपने निवेश में जो रुचि दिखाई है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए इसको तवज्जो देते हुए जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में जो भी प्रावधान आपके लिए इंसेंटिव्स, आपके लिए सब्सिडीज और अन्य सुविधाएं जो जो घोषित की गई हैं, उनको पूरी तरह से पालन करते हुए हम आपको उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर परिवेश देने का काम करेंगे। आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको सहूलियतें देंगे। और वैसे भी आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हमारा लक्ष्य 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का था, उसके सापेक्ष लगभग 33 लाख करोड़ के एमओयू उत्तर प्रदेश के आज के धरती पर एमओयू होना ये इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए जो एक परिवेश देने का काम किया है, माहौल देने का काम किया है, हम आपको आश्वस्त करते हैं आपकी संरक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके निवेश को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में आप संरक्षित और सुरक्षित पाएंगे, आपको बेहतर माहौल देंगे। और खासकर पर्यटन की यदि बात करें तो हम लोगों का 20,000 करोड़ का लक्ष्य था, उसके सापेक्ष आज 1,17,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश एमओयू होने का काम आप सबकी कृपा से हुआ है। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके परिवारीजन की तरह, आपके शुभचिंतक की तरह सदैव नीतियों और रीतियाँ जो भी उत्तर प्रदेश में तय की हैं उनका पालन करते हुए आपकी सुरक्षा में, संरक्षा में, आपके सहारे के लिए, आपके संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मैं पुनः आदरणीय अपने माननीय मंत्री जी भारत सरकार बड़े भाई जी किशन रेड्डी जी का उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन इस बात के लिए करता हूं कि उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए संरक्षित करने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद इसी प्रकार यह बना रहा तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हिंदुस्तान का पहला राज्य पर्यटन की दृष्टि से कोई भी टूरिस्ट अगर आएगा, चूँकि यहाँ अपार संभावना है, आध्यात्मिक स्थल हों, धार्मिक स्थल हों, प्राकृतिक रूप से स्थल हों, तमाम तरीके से ऐतिहासिक रूप से दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल यहाँ हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त व्यवस्थाएं हो, जहाँ एयर कनेक्टिविटी हो, जहाँ वाटर कनेक्टिविटी हो, ऐसे प्रदेश में आपका निवेश फलीभूत होगा, ये मैं आपको पुनः भरोसा दिलाता हूँ। और आदरणीय मंत्री जी आपका यह नेतृत्व मिलता रहा तो उत्तर प्रदेश को इन 5 सालों के अंदर अंदर बहुत आगे ले जाएंगे और पर्यटन के विकास के लिए, संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए हम बहुत कुछ आगे ले जाने का आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। मैं पुनः आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए और जो भी निवेशक यहाँ आए हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हमारे पर्यटन के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने एमओयू किए हैं या एमओयू करने की इच्छा रखते हैं, उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन,
वंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और अब मैं विनती करूंगी श्री मुकेश मेश्राम जी, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, to come and guide us. Before that, we would like to give a memento to our Minister Sir, Shri Jaiveer Singh ji, Cabinet Minister, Tourism and Culture, Government of Uttar Pradesh. जोरदार तालियां हो जाए ये गिफ्ट टूरिज्म उत्तर प्रदेश टूरिज्म की ओर से। और अब मैं विनती करूंगी मिस वी विद्यावती जी एंड श्री संतोष कुट्टी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। Ms. V. Vidyavati ji, Director General Archaeological Survey of India. Thank you so much for being with us, ma'am. Mr. M.L. Srivastava ji, thank you so much, sir. Mr. M.L. Srivastava ji, PCCF, come Additional Chief Secretary Tourism and Civil Aviation Department, Gangtok, Sikkim. Mr. Vivek Shukla ji, thank you so much. Ms. Sonia Kriplani ji, thank you so much for being with us. Mr. Avasti ji, thank you so much for always guiding us. और हमारे उत्तर प्रदेश टूरिज्म का एक बहुत ही प्यारा सा स्टॉल भी है। आप सबसे विनती करते हैं कि आप ज़रूर से उस स्टॉल को विज़िट करें और हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी लें। मैं सर की अनुमति से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अपने माननीय मंत्री जी की अनुमति से केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यूपी का हमारा नारा है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और ये नया नारा जो हम लोग दे रहे हैं कि यूपी में जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, यूपी में इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। ये मैं सर की अनुमति से कहूँगा, यूपी को देखना है, हर परिवार को, अपने बच्चों को मथुरा, काशी, अयोध्या सब जगह भेजना है, बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। और मैं विनती करूंगी श्री जयवीर जी को कि वे श्री जी किशन रेड्डी जी और हमारे माननीय मिनिस्टर टूरिज्म कल्चर एंड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मोमेंटो देके इनका भी अभिनंदन अदा करें। जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। वी आर वेरी वेरी ग्लैड। और यही नारा है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि आप सबको बुला रही है और ज़रूर से विज़िट करें। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा ना हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और अब मैं विनती करूंगी श्री मुकेश मेश्राम जी, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू गिव द क्लोजिंग रिमार्क्स। सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, श्री जी किशन रेड्डी जी, ऑनरेबल टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री जयवीर सिंह जी, all the dignitaries sitting on the dais and distinguished guests, participants, delegates, आप उस जगह पर हैं जो हॉस्पिटलिटी की कैपिटल है, मेहमान नवाजी के लिए जाने वाला शहर लखनऊ, जो अदब का शहर, तहजीब का शहर और मेहमान नवाजी का शहर है, जहाँ कहा जाता है पहले आप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो उसे कहते हैं आपके दौलत खाने में तशरीफ़ लेकर जाएंगे। जब अपने यहाँ बुलाते हैं तो कहते हैं
हमारे गरीब खाने में आइए। यानी हम कितने हम्बल हैं, हम्बलनेस ही हॉस्पिटलिटी की जनक है। सो दिस इज उत्तर प्रदेश, जहाँ पर देर इज इमेंस पोटेंशियल इन टूरिज्म सेक्टर एंड आगे बढ़ा दो भाई, and globally acclaimed tourist destinations, land of diversity with 12 tourist destinations, Ramayana Circuit, Krishna Braj Circuit and various other circuits, UNESCO World Heritage Sites. Uttar Pradesh focus on new thrust areas for faster development. We have recently come out with very attractive UP Tourism Policy 2022, launching one of the most industry-friendly policy, opening entire state for capital subsidy, incentive and disbursement that will be done online with transparent manner. And we are also in developing niche tourism areas, private sector participation, already 6 heliports we are offering to give on long-term lease. Then we have heritage tourism. Recently we have notified various forts and palaces, because in Bundelkhand, it's after survey, we have identified 31 such properties which we can lease out to make basically heritage hotels under adaptive reuse. And then we have tourism sectors and Tirth Vikas Parishads also we have formed. 33 new eligible categories. Basically, we have included all varieties of units under hospitality and tourism sector. So it covers river cruises, budget hotels, dhabas also for wayside amenities, camping, yoga centers, public museums, galleries. Every unit will get subsidies, capital subsidies, fiscal, non-fiscal both. And then these are several new themes added to, starting from heritage, art and tourism, culture to spiritual, adventure tourism, cuisine tourism, UA tourism. Honorable Minister just mentioned in his address. And this is tourism policy. Earlier in 2018, it was 15% subsidy, which we have enhanced to 25%. And if women entrepreneur is there, then additional 5% subsidy will be given. So in total, 30% subsidy for women and SC/ST investors. And projects focus tourism destinations. Lesser known tourism destinations where unserved destinations are, and we can give 30% subsidies. Maximum subsidy we are offering per project now raised to 40 crore. So these are very attractive incentives which we are offering, and these already Honorable Union Minister has mentioned. These are Suchna Swagat Suvidha, which tourism encompasses and revolves around. So thank you very much. Thank you very much, Honorable Union Minister for Tourism, Culture and Development of Northeastern regions of India, for sparing his valuable time to address this August gathering. मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर हमें प्रदान किया। साथ ही साथ भारत सरकार से आए हुए समस्त सचिवगण एवं अधिकारीगण का, हमारे सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री अवनीश अवस्थी जी एवं जीएन सिंह जी का, एवं यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का, भाइयों बहनों का, डेलीगेट्स का थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आप सब लोगों के साथ सहयोग और सत्कार के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का।